اس کو پورا کرنا معیشت میں وہ سخت نہیں تھی. ہم نے مدد لی, چین سے مدد لی, سعودی عرب سے مدد لی, عرب امارات ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی, لیکن اس کے باوجود ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا, مشکل فیصلے کیے. ہمیں احساس ہے کہ اس وقت لوگوں کی جو مالی مشکلات ہیں, مہنگائی کا ہمیں پورا احساس ہے. ہم اس سے نہ غافل ہیں نہ اس سے لا تعلق ہو سکتے ہیں, لیکن ایسے اقدامات لیے ہیں, لے رہے ہیں, جس سے پچھلے 2 سالوں میں استحکام کی کوشش کی گئی, معاشی استحکام کی, اسٹیبلٹی کی. اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیبلٹی آئی, اور پھر اب ریکوری کی طرف جو معیشت ہے وہ مائل ہو رہی ہے. اور آج ورلڈ بینک نے جو لیٹسٹ اپنا سروے جاری کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت 5.37% پر دوبارہ گرو کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کا جو طرہ امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے دور میں معیشت نے 5% سے گرو کیا. ہم نے کووڈ کے حالات میں جہاں پوری دنیا کی معیشت سکڑی ہے, اکنامک کنٹریکشن ہوئی ہے, جہاں آمد و رفت معطل رہی ہے, کاروبار بند رہے ہیں, آپ کا پتہ ہے کہ ایئر ٹریول بند رہا, آپ کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری متاثر ہوئی, ٹورزم متاثر ہوا. 2019 میں اور 2020 میں 73% انٹرنیشنل ٹریول کم ہوا, ٹورزم کا ریونیو کم ہوا, صنعتیں بند ہوئیں, شادی ہال بند رہے, ریسٹورنٹس بند رہے, تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا. ان حالات میں بھی ہم نے 5.37% اب معیشت نے گرو کیا ہے. جو ہمارا ڈیٹ ٹو GDP ریشو تھا, جو بتدریج بڑھتا چلا جا رہا تھا, ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ابھی بھی جو ہمارا فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ ہے اس سے زیادہ ہے, لیکن اس کا ٹرینڈ تبدیل ہو گیا. جو جا چکا تھا 83.3% پر, وہ اب کم ہو کے 72-73% پر آ گیا ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ 2-3 سالوں میں ہم اس کو فسکل ایکٹ کے مطابق ڈھال لیں. اسی طرح آپ کی جو فی کس آمدنی تھی, جس سے کہ عام شہری کی قوت خرید جس کا جائزہ لیا جاتا ہے, وہ مسلم لیگ کے آخری سال میں وہ تھی $547 فی کس. آج وہ بڑھ کر ہو گئی ہے $1666 فی کس. وہ بنتی ہے, اگر روپوں میں کریں تو 2,80,000 روپیہ فی کس. اب یہ ایک گریجول اس میں انکریز آ رہا ہے. تو میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں, حالات مشکل ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن ان مشکل حالات میں بھی اب ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا سال ہے یہ ریکوری کا ہوگا, اور انشاءاللہ جو اگلا سال ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی کا ہوگا. جہاں تک دہشت گردی کا آپ نے سوال اٹھایا, پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے, اپنی قربانیوں سے اس دہشت گردی کا بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا. ہماری افواج نے, ہماری پولیس نے, ہمارے عام شہریوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق رائے پیدا کی, اور ہمیں بہت کامیابی ہوئی. اب بھی کچھ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے ان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے ہیں نہ ڈالیں گے. مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کے جو دشمن ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یہاں عدم استحکام ہو, جو چاہتے ہیں کہ یہاں انتشار ہو, انہیں ناکامی ہوگی. ان کے عزائم جو ہے انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گے. تو ہمیں پورا اعتماد ہے, پورا بھروسہ ہے اللہ پر, اپنی عوام پر, اپنی افواج پر, کہ ہم دہشت گردوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے. سر, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کسان مارچ, ٹریکٹر مارچ کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, وہ ان کا سیاسی حق ہے, ضرور کریں. انہوں نے تو ایک
मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ इंशाअल्लाह 27 फरवरी को। वो वहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। सर आपने एक लेटर लिखा है नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, आपने एक लेटर लिखा है, उस पर उनका कोई रिस्पांस है? जी, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि दोनों अपनी पार्टीज़ के हेड, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन हैं और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, मैंने उनको ख़त लिखा है। वो ख़त क्या है? वो ख़त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का जो दरीना मुतालबा था और ख्वाहिश थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ठोस इक़दामात उठाए। वो क्या है? नंबर 1, हमने उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। नंबर 2, उस मंशूर की बुनियाद पर हमने अवाम से रजू किया। 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब की आवाम ने हमारा साथ दिया। किस तरह दिया? 46 कौमी असम्बली की सीटें हैं जनूबी पंजाब की, उन 46 में से आज 34 मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, 5 ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं और 12 ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं। तो मैंडेट हमें मिल गया। उस मैंडेट के बाद हमने आगे बढ़े, और किस तरह बढ़े? 2/3 अक्सरियत चाहिए आइनी तरमीम के लिए। आइनी तरमीम के बगैर सूबा बन नहीं सकता। 2/3 अक्सरियत हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? हमने कहा कि जो इंतज़ामी इक़दामात हम उठा सकते हैं हमें उठाने चाहिए। चुनांचे हमने क्या किया? नंबर 1, हमने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के सफ़र का आगाज़ किया। आज मुल्तान में, बहावलपुर में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ और दफातर कायम हो चुके हैं। सेक्रेटरीज़ ने बैठना शुरू कर दिया है और डिवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर अमली जामा पहनाना हमने शुरू कर दिया है। आज मुल्तान में, बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट कायम हो चुके हैं। मतीतल रोड पे आप जाके देखें, जो मुल्तान का सेक्रेटेरिएट है वो अब बुनियादों से ऊपर दिखाई दे रहा है। हमने जनूबी पंजाब का पैसा जो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया जाता था बजट में दिखावे के तौर पर, और दौरान साल उसको और इलाकों में मुंतकिल कर लिया जाता था, हमने उसके ख़िलाफ़ एक बंद बांधा है और फैसला किया है कि जनूबी पंजाब का जो पैसा होगा वो सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। तो हमने बजट को रिंग फेंस कर दिया है। और आप देखें कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा इस साल पंजाब असम्बली ने 2 सालाना तरक्याती प्रोग्राम पास किए, एक जनूबी पंजाब के लिए और एक शुमाली पंजाब के लिए, और उसके लिए जो 35% रकूम मुख्तस की हैं वो जनूबी पंजाब पर ही खर्च होंगी। अगर कोई मनसूबा नहीं चला, स्लो चल रहा है, तो वो पैसा जनूबी पंजाब में ही मुंतकिल होगा, कहीं और नहीं जाएगा। हमने क्या किया? जनूबी पंजाब की आबादी को देखते हुए, जो कि 32% है मुकम्मल पंजाब की आबादी का, हम 32% हिस्सा बनते हैं आबादी के लिहाज से। हमने हमारी कमेटी ने जो हाशिम जमा बख्त की सरबराही में तश्कील दी गई, अपनी सिफारिशात मुरतब कर दी हैं, वज़ीर आला को भिजवा दी हैं, काबीना को भिजवा दी हैं, और फैसला किया है कि अब पंजाब की जो मुलाजमतें हैं उनका 32% कोटा जनूबी पंजाब के बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्तस किया जाएगा। ये हैं अमली इक़दामात जो हमने कर दिए। अब अगली बात जो गिलानी साहब ने कही सेनेट में कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए, मैंने कहा मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मुझे भी सिर्फ सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, मुझे भी सूबा चाहिए। तो आइए मिलकर सूबा बनाते हैं। किस तरह बनेगा? मैं बिल लेके आता हूँ, और मैंने खान साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन PTI से, और उनकी इजाज़त से मैंने उनको ख़त लिख दिया। और वो क्या है ख़त? उनकी क़यादत को लिखा, क्योंकि फ़ैसला तो बिलावल ने करना है ना, गिलानी साहब तो नहीं कर सकते।
उनको ख़त लिखा है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी क्या हमारा साथ देगी? मैंने ख़त लिखा शहबाज शरीफ को, मैंने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए क्या मुस्लिम लीग नून साथ देगी? अगर वो देती है तो हम उनके साथ बैठकर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तैयार हैं और दियानतदारी से तैयार हैं, ताकि 3.5 करोड़ जनूबी पंजाब की आवाम का दरीना मसला हल हो। और यकीन जाने, हम मुल्तान की मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ, दियानतदारी से कह रहा हूँ, आप अगर ये करती हैं आईनी तरमीम तो हम सेहरा आपके गले में डालने को भी तैयार हैं। आप सेहरा ले ले, हम इसमें कोई सियासी क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाह रहे। आप मालिक बन जाएं, आप ओनरशिप ले लें इसकी। हमारा तो आइन का हिस्सा है, हमारे तो मंशूर का हिस्सा है। आप इसके हिस्सेदार बनना चाहें, अल्लाह मुबारक करे, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ गुफ्तगू से तो नहीं होगा ना। अमली इक़दामात, जो अमली इक़दामात हम कर सकते थे हमने कर दिए। अगले मरने के लिए हमें आपका तावन दरकार है। अब उनकी जमातें अगर ये तावन करती हैं हमें खुशी होगी। फ़र्ज़ कीजिए उनमें कोई हिचकिचाहट है या वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, तो फिर मेरी दरख्वास्त है जनूबी पंजाब के और दीगर MNA से कि वो अपनी जमातों को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कायल करें कि इस पर सियासत न करें, इस पर मिल बैठ कर एक मुस्बत तजवीज़ जो हमने पेश की है, और मेरे ख़त का मतन मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। मैं आपको मीडिया को आपको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। आप मुझे दीजिए नंबर, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप मेरा ख़त पढ़ लीजिए जी, और उसका आप देख लीजिए उसका लबो लहजा क्या है और उसका मतन क्या है। उससे ज़ाहिर होगा कि हमने आजिज़ाना तौर पर उनसे गुजारिश की है कि आइए मिल के आगे बढ़ते हैं, और इसका क्रेडिट भी हम शेयर करना चाहते हैं। कोई अपने खाते नहीं डालना चाहते, हम शेयर करना चाहते हैं। तो अब खुदा करे कि वो मुस्बत जवाब दें। मैं मुंतज़िर हूँ उनके जवाब का। कम से कम जो भी जवाब देना चाहते हैं, मैंने इन राइटिंग ख़त भेजा है, मैं तवक्को करता हूँ कि इन राइटिंग मुझे उनका जवाब मिलेगा और वो लोग नामज़द करेंगे जो कमेटीज़ में बैठकर हमारे साथ बात आगे बढ़ाएंगे। कम से कम मैंने फ़ैसला कर लिया है कि इंशाअल्लाह मैं एक बिल मुरतब करूँगा और वो बिल लेकर जाऊँगा असेंबली में, अपनी पार्टी के सामने रखूँगा, और उस बिल पर इनसे गुफ्तगू करने का हम आगाज़ करने का इरादा रखते हैं। सदारती निज़ाम की बात गश्त है, सदारती निज़ाम की बात गश्त है, इस वाले से क्या कुव्वत खरीद खत्म हो गई है दिहाड़ी। वो सवाल आ गया ना, मैं जब उसका जवाब दे दिया, आप रिपीट कर रहे हैं ना किसी। मैं जवाब दे चुका, आपने गालिबन सुना नहीं। अगर सदारती निज़ाम की बात गश्त है, इस वाले से क्या कहेंगे? ये क्या सराहियाँ हैं, ये पतंग उड़ती रहती है, पतंग ना उड़ाए तो काम कैसे चले। अच्छा सर, बलदियाती इंतखाबात का ऐलान हुआ है पंजाब में। अभी ऐलान नहीं हुआ। ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, और हम चाहते हैं कि हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हों और एक फ़ाल किस्म का एक सिस्टम आए। और आप देखें कि हमारा जो सोच है उसकी सोच के बरक्स सिंध ने जो बल्दियाती कानून लेकर आए हैं, आज पूरा सिंध का आवाम, उसमें PTI नहीं, उसमें PTI है, उसमें जमात इस्लामी है, उसमें अपना MQM पाकिस्तान है, उसमें GDA की जमातें हैं, वो उसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल है, वो सब ने मिलकर सिंध के बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि धरने दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एहतजाज किया जा रहा है और प्रोटेस्ट हो रहा है। असेंबली के अंदर भी हो रहा है, असेंबली के बाद भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना बेख्तियार निज़ाम लाना चाह रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में एक बाअख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं। हमारा इरादा यही है और इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे। PSL के हवाले से भी कुछ कह रहे हैं, PSL शुरू हो रही है। PSL देखिए, PSL होनी चाहिए। PSL की पूरी कौम मुंतज़िर है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और वो शौक़ से देखते हैं। बदकिस्मती से कोरोना की लहर, 5वीं लहर फिर बढ़ रही है।
सबसे समझदार आदमी हमारे इस क्राउड में आप दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। हम बाकी सब मुजरिम खड़े हैं आपके इर्द गिर्द जिन्होंने नहीं पहना हुआ, और हमें आपसे सीखना चाहिए। आप हमें गाइड कर रहे हैं कि कोरोना एक लहर फिर बढ़ रही है, तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। हमारी ख्वाहिश है कि ये मैचेस हों, लेकिन अगर कोरोना की ये शरह बढ़ती चली जाए तो फिर शायद हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन लग जाए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, रिस्ट्रिक्शन लग जाए नंबर्स पर मैचेस तो होने चाहिए। साथ नहीं देती नहीं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि हम मईशत को लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। सर, अगर नून लीग सूबे के मामले में आपके साथ ताउन नहीं करती, क्या ये मामला ठप हो जाएगा या आपके पास कोई और भी प्लान है? हमारे पास देखिए, हम तो इसको लेके आगे चलेंगे। अगर वो ताउन नहीं करते तो ये उनकी सवाबदीद है। कम से कम जनूबी पंजाब की आवाम को ये बावर हो जाएगा कि कौन सी जमात और कौन सी जमात की क़यादत क्या सोच रखती है। मेरी फिर उनसे मुद्दबाना गुजारिश होगी कि वो फराख दिली का मुजाहरा करें और तंग दिली का मुजाहरा न करें। शाह साहब, सदारती निज़ाम की जो उड़ती पतंग आपने कही है, उसकी डोर किसके हाथ में देख रहे हैं और इसको आप चढ़ता देख रहे हैं या वो काटा होगा? देखिए, ये हवा में गुब्बारे छोड़े जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर गुब्बारा, हाँ आप आपसे बड़ा कौन हो सकता है? अच्छा सर, तहरीक इंसाफ की तंजीम शादी तहरीर होगी, अब जो है जनूबी पंजाब के लिए जो पहले थे वो तब्दील हो गए, तो निचली सतह पे भी तब्दीली होगी या पुराने कारकुनों को जो है मौका दिया जाएगा इस वाले? देखिए, चेयरमैन ने रीऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया है और उन्होंने नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, और जनूबी पंजाब के लिए उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। खुसरो बख्तियार साहब ने एक अपना एग्जेक्टिव काउंसिल भी तश्कील दी है और इस पर वो काम कर रहे हैं। वो उनका मशावरत का अमल जारी है और वही बाख्तियार हैं और वही फैसला करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी भाई। कुछ हसरतें ऐसी हैं जो हसरतें रह जाती हैं, ठीक है। ये पिछले 3.5 साल से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी, इंशाल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी। और मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि जब कल भी मैंने असेंबली में बात की तो मुझे बहुत से चेहरे मुरझाए हुए मायूस दिखाई दिए। इंशाल्लाह 2023 में भी आपको सरप्राइज़ देंगे। आपको हैरानकुन लग रहा है पर सरप्राइज़ देंगे। लव लेटर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि चीन रूस से मदद ली, लेकिन इसके बावजूद IMF के पास जाना पड़ा। महंगाई का हमें पूरा एहसास है, गाफिल नहीं है।